So I think how many of you know about Shri Devi Chauhan? I'm not sure. Actually, what there is to, after the introduction, he will give you whatever the technicality, and then there is paper and pen around here. जिसको भी और थोड़ा जास्ती कुछ जानकारी और extra information you need, I pass this paper. You can write down the question and then we'll pass it on to him. Now, before he comes, I think we all know that health is something very important. I'm sure you all agree. And unfortunately, you agree or not? You agree, right? Only this side agrees. So I hope this side doesn't agree. Health is very important. I think there are quite beautiful saying health, regarding health, wealth, character. But I think कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है if we don't have health. इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी if you don't have a real good health, or maybe you can carry yourself independently, then there is nothing. So let's all take a pledge before we leave this Arya Samaj, all that we all will be happy and healthy. Now, the one saying I would like to remind you all that a good dining is very important. A good dining is very important to think, to grow, even to act independently. A good dining is very important. I think he is coming, so I will just wait for a few minutes. So here today, हम सब लाभ लेने वाला है कैसे with the naturopathy or the natural diet way we are going to improve our health system. So here comes, ladies and gentlemen, a very notable and a very renowned Guruji, a spiritual leader, Mr. B.V. Chauhan. Please, all of you, let's welcome. A warm welcome, sir, Mr. B.V. Chauhan ji. A warm welcome हमारी छोटी सी शहर में Arusha हम कहते हैं. I'm sure you know Tanzania. You're warmly welcome. Namaste. आइए बैठिए. Please have a seat, sir. Very warm welcome. आपके साथ मैडम भी है, राइट? मामा भी है. चलो दोनों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारी छोटी सी ब्यूटीफुल Arusha Kilimanjaro के हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं हमारा. Please have a seat. So ladies and gentlemen, let me continue. Health is so important, and आज की दुनिया में सबसे बड़े problem is health. I know some of you are really nodding, and हमारी this Arusha places we are really blessed. Pollution कम है, जैसे कल ही मंजू के साथ मेरा बात हुआ था. The less polluted place, maybe we can't say in the whole world, but I'm sure we do come in one of the priority place. But still, let's hear what Sri Devi Chauhan has to speak about it. इनके बारे में कहा जाए तो he has done intensive research. Intensive research. Story ऐसा है या कहानी ऐसा है. Guruji, he started having lot of issue personally, and I think it's such a nice, noble way of giving back to the society. He himself had lot of issues. If I'm not mistaken, almost for 9 years he was suffering badly. So what he thought, he started his research and more studied how we can develop a good health. And then his new diet, that is the new diet system, adapt to new diet system he has developed, which is very widespread nowadays. थोड़ी इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, Gujarat, definitely Maharashtra, everywhere it is very known. I'm sure some of us have even read
Also internationally, he is very acclaimed person, and mainly he talks about raw food, the intake of raw food and what it gives to your body and how your body take the raw food. हम सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी तो यही है, कितना सारा हम लोग पकाते हैं, बहुत all the vitamins are gone. You might think that आप खाना बराबर खाते हो, but that is not the way. We still don't know. I myself almost reaching 60, but फिर भी the right way of cooking, it is something to be corrected in our system. So ladies and gentlemen, let's hear from the Guruji himself. Before that, let us do a little bit of welcoming and honoring. Sir, please, the Arya Samaj, Arya Samaj Chairman, Gulshan Agarwal, I request you to come forward and please Haat Pe Naangi, just a way of welcome. Marty, come forward. Marty? Okay, thank you so much. और अभी मैं माइक उनके हाथ में देती हूँ. And yes, right. So sir, please, we are waiting to hear from you. Thank you. Once again, welcome. कोई भी शुभ कार्य हम प्रभु को याद करके करते हैं, तो पहले इस प्रार्थना जो मेरी पत्नी है सर्व चौहान, तो बोलेंगे आपको सुनना है, बाद में हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। हेलो, प्रार्थना में गाती हूँ, आपको शब्द ही सुनना है। इसमें ये साधना तब सेवा सदन की साधना आ जाती है। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले
अर्पित करना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ लेना सीखे। असत नहीं अब प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। लेकिन यहाँ ईस्ट अफ्रीका तांजानिया में ये हमारी पहली मुलाकात है, पहली शिविर है। तो इसके लिए मैं पंडित जी जो कहते हैं शास्त्री परिवार, उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके चरणों में और आप सभी के चरणों में प्रणाम। हमारे पास समय बहुत कम है। 1 घंटे में हमें निरोग कैसे रहे और प्रभु प्राप्ति जो इंसान का ध्येय है, लक्ष्य है, गोल है, वहां तक कैसे पहुंच सके, इसका खुद के अनुभव से, परिवार के अनुभव से और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से मैं मेरा ओपिनियन, निजी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मुझे मिला है, इसके राह पे चलते हर कोई ब्रांच के चिकित्सक, वो चाहे आयुर्वेदिक वैद्य हो या वास्तुशास्त्री हो, रेकी सिखाने वाले हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कोई भी, और केवल MBBS ऐसा नहीं, MS, MD, DM, DM से भी आगे, जो अपने रोग ठीक नहीं कर पाए, वो इस सिस्टम से अपने रोग ठीक कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक गॉड गिवन अल्टीमेट रास्ता। मैन-मेड साइंस के रास्ते पे हम बहुत चले, आयुर्वेद भी अपनाया, एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि दिन ब दिन रोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, न केवल ईस्ट अफ्रीका में, न केवल तांजानिया में, सारी दुनिया में। मतलब स्पष्ट है कि हम कुछ गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। सही दिशा में दौड़ते होते तो हमारे रोग नेस्त नाबूद हो जाते। कोई पति, कोई थेरेपी, कोई इलाज, कोई उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में 84 लाख दुनिया के इतने प्राणी, किसी को कोई थेरेपी, इलाज, उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, वैद्य के पास नहीं जाते, वास्तुशास्त्री के पास नहीं जाते,
रेकी देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाते, ना फिजिकल बॉडी चेकअप करवाते, और फिर भी वो तंदुरुस्त है। इतनी कहर चल गई कोरोना की, सारी दुनिया में महामारी फैल गई, जल चल स्थल चल नभ चल कोई नहीं मरे, केवल इंसान, और इंसान ने जो अपने पास पालतू पशु पक्षी रखे थे उनको कोरोना हुआ, वो मर गए। आप सभी को पता होगा कि एक एक वैक्सीन नहीं, दो वैक्सीन नहीं, तीन वैक्सीन लिया, सुपर डोज भी लिया, फिर भी मर गए, डॉक्टर्स भी मर गए। मतलब क्या है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये गलती हमें समझना होगा और इसको सुधारना होगा। नहीं समझेंगे, नहीं सुधारेंगे तो ये तो आगे 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 चलता ही जाएगा। आज इतनी बीमारियां हैं, फ्यूचर में और ज्यादा बीमारियां आ जाएगी, और इलाज उपचार में हम खरबों खर्च कर देंगे, फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि सही दिशा क्या है, गलत दिशा क्या है। मेरी भी हालत बहुत खराब थी, बचपन से मैं बहुत बीमार रहा, इतनी बीमारियां आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब कुछ करके देखा, रोग आगे ही बढ़ते जाते थे। तब अल्टरनेटिव थेरेपीज का प्रयोग किया, स्वमूत्र पिया, गौमूत्र पिया, पानीपति की, हास्य थेरेपी की, योगासन किए, प्राणायाम किए, क्या क्या नहीं किया जो आज दुनिया में चल रहा है, सब कुछ करके देखा, लेकिन रोग गए नहीं, कम भी नहीं हुए, बढ़ते ही गए। तब मैंने दोहरा धागा, भूत, हाँ, ये सब कुछ चलता है ना अब दुनिया में, ये भी करके देखा। यज्ञ, हवन, होम, क्रियाकांड, कोई परिणाम नहीं। अब मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता था। तो once upon a time I decided to commit suicide. मैंने सोच लिया कि अभी ऐसा तो जीवन में नहीं जी सकता, Let me commit suicide. अब तो आत्महत्या यही मेरे लिए अंतिम इलाज है। लेकिन भगवान ने कुछ और चाहा होगा कि मुझे सही रास्ता दिखा दिया, जो आज मैं सारी दुनिया को बताता हूं, जो आज आपके सामने रखता हूं। एकदम सरल है, समय हमारे पास नहीं है, नहीं तो थोड़ा डिटेल में जाते, डिस्कस करते, हमारे डाउट्स क्लियर करते, लेकिन 1 घंटे में हमें सारी बातें समझा देना है। तो मेरी समझ में ये आया कि सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी बीमार नहीं, केवल इंसान बीमार है। इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, इंसान खुद है। तो क्या है इसके पीछे वजह, कारण? अब पता चला कि सारी सृष्टि में हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं। अब देख लेना, ये पेड़ पौधे अपना भोजन खाते हैं, फल देते हैं, सलाद, सब्जी, पत्तियां, ये कंदमूल सब कुछ देते हैं, खुद नहीं खाते, वो केवल हवा, प्रकाश, पानी लेते हैं। उसी तरह से जो पक्षी है, चिड़िया, वो केवल दाने चुनते हैं, अनाज और दालें। कोई पक्षी ऐसे जो कीड़े भी खाते हैं, क्योंकि वो मिश्र आहार है।
ये सारा तय कौन करता है? भगवान, जिसने जन्म दिया। अब हम देखते हैं तृण आहारी, घास खाने वाले, हाथी, घोड़ा, भैंस, भेड़, गाय, खरगोश, हिरण, ये केवल और केवल घास खाते हैं, जंगल में रहते हैं, फिर भी वो शिकार नहीं करते, मांस नहीं खाते। और जो मांस खाने वाले हैं, शेर, चीता, बाघ, वरु, मांसाहारी प्राणी, वो घास नहीं खाते, वो केवल मांस खाते हैं। दरिया में, समंदर में, सरोवर में, नदियों में रहने वाले जलचर, वहां उनके लिए जो भोजन भगवान ने दिया वो ही खाते। तो अब मेरी समझ में आया कि इंसान का भी कोई खास भोजन होना चाहिए। तब श्रीमद् भगवद गीता से समझ में आया, श्री रामचरितमानस से समझ में आया, ये सारी बातें कुरान में भी है, बाइबल में भी है, तालमुद तोरा में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, हर कोई जगह भी है। वो बाद में पता चला, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान का भोजन जो है वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश। फिर से रिपीट करता हूं, इंसान का भोजन कंद, मूल जो जमीन के नीचे होते हैं, फूल, फल, पत्तियां, ये खाने की चीजें हो गई। अब पीने का पानी, और बाकी बाद में जो है हवा जो नाक से लेना है, और बाकी जो है हमें कुछ इसके लिए प्रयास नहीं करना, वो है प्रकाश और आकाश। तो इंसान का भोजन हो गया। ऐसा भोजन जो कोई इंसान लेगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, नेवर, इम्पॉसिबल। लेकिन आज हम इसके अलावा ये सब कुछ खाते हैं, तो स्वाभाविक है बीमार होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकेंगे, भगवान भी नहीं। तो हमने गलत आहार खाया, अब पता चल गया, तो क्या करें? अब सही आहार खाने लगेंगे तो क्या फिर से ठीक हो जाएंगे? नहीं, संभव नहीं। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कार है जो पेट्रोल से चलने वाली। इसमें हम पेट्रोल डालेंगे तो 15 साल 20 साल जितना इसका लाइफ स्पान है, अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन यही पेट्रोल कार में यदि हम डीजल डाल देंगे, केरोसिन डाल देंगे, मिट्टी का तेल, या तो सीएनजी, एलपीजी, कोयला, कुछ भी और डाल देंगे, तो ये कार चलने वाली नहीं है। तो यही एक कार है, इंजन है, भगवान ने बनाया हुआ मशीन है। इसके लिए भी कोई खास भोजन है। वहां जैसे डीजल टैंक है, पेट्रोल टैंक है, सीएनजी गैस की टैंक है, उसी तरह भगवान ने इस व्हीकल में, इस मशीन में एक टैंक दी है। ये है हमारा पेट, स्टमक। तो इसमें जो हमें डालना, वो हमें डालना है हमारा भोजन, इंसान का भोजन। तो इंसान का भोजन जो शास्त्रों में बताया है, हर कोई शास्त्र में, वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश। लेकिन हमने गलती कर दी, इसके अलावा कुछ खाया। क्या क्या खाया हम सब जानते हैं। हमने अनाज दालें खाई, अनाज दालों से बनी वेराइटी रेसिपी हमने खाई, बेकरी प्रोडक्ट खाया, मांस, मछली, अंडे खाए, दूध से बनी चीजें खाई, सबको आग पे चढ़ा के खाया, नष्ट भ्रष्ट करके खाया। तो अब ये हमारे लिए एक पेट्रोल की टैंक में हमने डीजल डाल दिया, ऐसा हो गया। और केवल डीजल नहीं, सब कुछ डाल दिया। केवल एक गलत खाना डाला होगा तो हम कह सकते हैं केवल डीजल डाला, लेकिन डीजल भी डाला, सीएनजी डाला, एलपीजी डाला, कोयला डाला,
सब कुछ डाल दिया, तो अब एक कार कैसे चलेगी? हो गया, गलती हो गई, अब क्या करें? तो स्वाभाविक है, हमने पेट्रोल के टैंक में डीजल डाल दिया, तो क्या होगा? वो वहां जो सारी सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम, इसमें वो धुआं भर जाएगा, कार्बन पार्टिकल्स भर जाएंगे, चौकअप हो जाएगी सारी सिस्टम। तो क्या करना पड़ेगा? इसको खोल के साफ करना पड़ेगा। अच्छी तरह से साफ कर लिया और बाद में पेट्रोल डाल दिया, अब वो कार चलेगी। अब एक कार में कभी भी डीजल या और कोई नहीं डालना, केवल और केवल शुद्ध पेट्रोल डालना, तो एक कार अब लाइफ लॉन्ग अच्छी तरह से काम करेगी। बस वही नियम यहाँ लागू होता है, कुछ नया नहीं है। कोई मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है, कोई आयुर्वेदिक साइंस की जरूरत नहीं है, कोई योगा प्राणायाम किसी की जरूरत नहीं है, कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज, कोई किसी की जरूरत नहीं, जो आज तक हम करके चले आए और हमारा समय, शक्ति और धन बर्बाद किया। नथिंग इज रिक्वायर्ड, और कोई प्राणी नहीं करता और वो निरोग रह रहे हैं। जब से सृष्टि बनी वो अपना ही भोजन खाते हैं और निरोग। यदि हम भी जो गलती कर दी इसको सुधार ले, सफाई कर ले और बाद में सही खाना खाएंगे, यानी कि हमारी पेट में सही इसका जो भोजन है डालेंगे, तो अब हमारा शरीर इसको पचा पाएगा और कोई रोग कभी भी नहीं होंगे। जो हमने गलत खाना खाया वो हमारा शरीर पचा नहीं सका। जन्म से ही हमने पराई माँ का दूध पिया। बच्चा पीना नहीं चाहता, लेकिन माँ बिना पिलाए रह नहीं सकती, तलाक पिलाती है, जबरदस्ती पिलाती है, क्योंकि इसलिए उनमें वो भरा पड़ा है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध में कैल्शियम है, दूध में फैट है, दूध नहीं पिएगा तो ग्रो कैसे करेगा, सारी भ्रांतियां हैं, गलत है। ये जब मेरी समझ में आया, पहले मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम भी गाय भैंस अपने घर पे रखते थे, मैंने भी दूध बहुत पिया, दूध से बनी चीजें बहुत खाई, घी, मिठाइयाँ, मावा, सब कुछ बहुत खाया, क्योंकि उस वक्त मुझे सही बात का पता नहीं था। उस वक्त मैं ऐसा मानता था भगवान कृष्ण ने भी दूध पिया है, ये सारी गलत कथाएं, इसमें मैं भ्रमित था। लेकिन जब पता चला तब मैंने प्रयोग करके देखा कि चलो प्रयोग तो करें, वैसे ही मरना है, इसमें मर जाएंगे क्या है, ना सुसाइड कर लेंगे और आत्मा भटकती रहेगी, इसकी जगह जरा प्रयोग तो करें, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने दूध छोड़ दिया, अपने आप छूट गया और तुरंत रिवर्स होना शुरू हो गया। बहुत फायदा महसूस होने लगा। अब पता चला कि अनाथ दाने हमारा भोजन नहीं है, तो ये भी छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इससे और फायदा मिला। अब आग पे चढ़ाया हुआ, पकाया हुआ, नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, जिसमें सत्व तत्व कोई बचते नहीं है, ये अब छोड़ दिया कि अन्य प्राणी कोई आग पे पका के नहीं खाते, ऐसा मैंने भी शुरू किया, प्रयोग किया। मन तो नहीं मानता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, साइंस पढ़ा लिखा, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। तब मैंने एक प्रयोग का सहारा लिया और इसमें भी सफल हो गया। अब मुझे पता चला कि ये तो ठीक है, धीरे धीरे इतना परिणाम मिला, लेकिन अब जो पहले गलत खाना डाल दिया है, पहले डीजल डाल दिया है, इससे पूरा सिस्टम भर गया है, तो इसको तो सब करना जरूरी है। ये सब कर देंगे तो जल्दी परिणाम मिलेगा। तो मैंने ये भी करके देखा। हम
हम सब जानते हैं, मैं भी जानता था कि कब्ज सारे रोगों का कारण। तो कब्ज को हटाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो भी गलत दिशा के किए। कब्ज को हटाने के लिए मैंने हिमल, हरड़, त्रिफला चूर्ण और नाना प्रकार के चूर्ण बाजार में मिलते हैं, ऐसे सारे चूर्ण, अरंड के, ये सारे बहुत प्रयोग करके देखा था, लेकिन मैं उलझन में था, मैं भ्रांति में भटक रहा था। मुझे लगता था कि ये बड़ी आंख साफ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ी आंख में और ज्यादा चिपकता जाता था। मुझे सही बात समझ में आई तब पता चला। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले बड़ी आंख को साफ करने पे जोर दिया। तो मेरी समझ में आया कि जब ऋषि मुनियों को भी गलत खाना शुरू किया, ऋषि मुनियों ने भी गाय का दूध पीना शुरू किया, तब से वो रोगी होने लगे। पहले रोगी नहीं थे, बाद में गाय रखने लगे, अपने आश्रम में दूध पीने लगे, वो रोगी होने लगे। तो उन्होंने अपनी बड़ी आंख को साफ किया, दूध नहीं बंद किया। ये बंद कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी, हम भी गलत राह पे नहीं जाते। उन्होंने नदियों में जाके अपनी बड़ी आंख को घुमा के वैक्यूम क्रिएट करके नौली जैसी आसन करके अंदर पानी भर लिया और बाहर जाके वो निष्कासन कर देते थे। इस तरीके से वो बड़ी आंख साफ करते थे। बाद में आयुर्वेद का जमाना आया, तो आयुर्वेद ने भी बस्ती प्रयोग किया, लेकिन वात पद कफ, वात पित्त कफ, इसके हिसाब से उन्होंने प्रयोग किया। इसमें बहुत सारी औषधियां डालते थे। वात वालों को कोई और औषधि, पित्त वालों को और औषधि, कफ वाले को और औषधि, लेकिन बड़ी आंख साफ करते थे। बाद में देखा नेचुरोपैथी वाले, वो भी गर्म पानी, ठंडे पानी से बड़ी आंख को साफ करते थे। वो भी बस के प्रयोग नाम देते थे। तो नेचुरोपैथी में वो ही करवाते थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे 5 तत्वों के हिसाब से वो भी वहां बस्ती प्रयोग करवाते थे। अब एलोपैथी का जमाना आया, तो जब सर्जरी करनी है तब वो कोई केमिकल डालते हैं और बड़ी आंख को साफ करते हैं। इन सभी में से मेरे ख्याल में इतना आया कि हर कोई थेरेपी अपने अपने हिसाब से करती है, लेकिन करती क्या है, बड़ी आंख को साफ करते हैं। तो हमने सोचा इजी तरीका ढूंढ निकाले, हम किसी के पास जाना भी ना पड़े। तो हमने सादा पानी का प्रयोग किया, नल का जल लिया। ये जो बाजार में मिलता है इंस्ट्रूमेंट, यहां भी लाए हैं, जिसको चाहिए मिलेगा। ये प्लास्टिक का डिब्बा, इसमें पानी भर लेना पूरा, न ठंडा न गर्म, गुनगुना, वो वाटर। ये भरते वक्त यहाँ एक नल दिया है, बाल दिया है, एक खुला, इसको पहले बंद रखना। ये बंद रखे करके इसमें पानी पूरा भर लिया। अब ये जितनी लंबी है, 5 फीट 6 फीट लंबी है, तो 5 फीट अंदर इसको फिक्स कर देना है परमानेंटली। अब इसमें पानी भर दिया। ये जो पूरी ट्यूब है लंबी, अब ये खोलते हैं। जैसे खोलते हैं, पहले हवा निकल जाती है, यहाँ से 2 छेद अंत में हवा निकल जाती है, में पानी निकलना शुरू होता है। जैसे पानी निकलना शुरू होता है, बड़ी आंख जो हमारी है, इसका अंतिम भाग जो मन द्वार है, उदार द्वार है, एनस है,
इसके द्वारा रेक्टम में मलाशय में डालना है, बस इतना 4 इंच। ज्यादा भी चला जाए, पूरी ट्यूब चढ़ी जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 4 इंच की, जिससे पानी रिवर्स में आ जाए। तो कुछ ही समय में ये पानी बड़ी आंख में भर जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा काम खत्म। अब शरीर करेगा। शरीर जो है बड़ी आंख पे प्रेशर डालेगा, इतना प्रेशर आएगा कि जो पानी हमने डाला तेजी से निकाल देगा। तो प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा, और प्रयोग करेंगे उनको ही परिणाम मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि इसके अलावा कुछ कोई ऑप्शन। हम कहते हैं नहीं, हर किसी का काम खुद का करते हैं, इसका काम और कोई नहीं कर सकते, ये इसका काम यही करेगा। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये करेंगे तो ही पाएंगे। अब ये जो पानी चढ़ाना है, बैठे बैठे भी चढ़ा सकते हैं, खड़े रहकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन ये है कि लेट के चढ़ाए। यदि सफिशिएंट स्पेस है टॉयलेट में, तो लेट जाए राइट हैंड साइड पे, तो ये अच्छी तरह से पानी बड़ी आंख में फैल जाएगा और सफाई अच्छी होगी। और स्पेस नहीं है, और हम बालकासन जैसे, बालक जैसे ना, जैसे शुरू में बालक चलना सीखता है, दोनों हाथ दोनों पैर, इस तरीके से हमारा सर जमीन से स्पर्श करना है, और इस पोजीशन में हमारा जो एनस है, मलद्वार है, ये सबसे ऊपर रहे। ऐसी पोजीशन में यदि पानी चढ़ाएंगे तो भी आसानी से वो पानी चढ़ जाएगा। और बाद में जितना हो सकते हैं रोक सकते हैं, रोकना, होल्ड करना आसानी से। शुरू में नहीं होगा, तुरंत दबाव आएगा और निकल जाएगा। तो ऐसा सुबह 2 बार करना, हर किसी को करना। जो कोई चाहते हैं कि मुझे कोई रोग ना हो उसको, और जिसको रोग है और हटाना चाहते हैं, हर सभी को, स्त्री को, पुरुष को, संसारी को, सन्यासी को, जो कोई करेंगे फायदा ही फायदा है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करें। लोग कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? तो ये यहाँ से करें। आज से ही जब से समय मिले, रात से ये प्रयोग करके देखो, आपको तुरंत पता चलेगा कि इसमें कितना गंदा भरा पड़ा है। एक बार गंदा निकला, आपने देख लिया, दूसरी बार यही क्रिया करो। अभी भी लगता है तो बहुत निकल रहा है, तो तीसरी बार। तो इस तरीके से ज्यादा एक साथ 3 बार। बाद में दोपहर को समय है तो दोपहर, नहीं तो रात को। इस तरीके से 3 महीने के लिए ये प्रयोग करके देखो, ज्यादातर सारे रोग चले जाएंगे। और वजन भी 3 महीने में, यदि जो मैं बताता हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो 3 महीने में 30 किलो वजन कम होना सहज है, आसान है। एक लोगों के अनुभव है 3 महीने में 40 किलो भी वजन कम किए हैं, और कुल मिला के 100 किलोग्राम वजन भी कम किए हैं। 156 से 56 पे आ गए हैं। और केवल वजन कम हुआ ऐसा नहीं, डायबिटीज दूर हो गया, आंखों की रोशनी मिल गई, जो अंधे हो गए थे, जो चल नहीं पाते थे, किलोमीटर चलने लगे, जिसको गैंग्रीन डायबिटीज के हिसाब से हो गया था, उंगलियां काट दी गई थी, और डॉक्टरों ने अब बता दिया था कि घुटनों के ऊपर से दोनों पैर काट देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ ठीक ठाक हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, और लंबे समय तक अच्छी तरीके से बिना कोई दवाई अपना जीवन व्यतीत किया।
ऐसे बहुत सारे केसेस है, जिसको संतान नहीं होते थे संतान हो गए, जिसको स्किन डिजीज थे, चाहे सोराइसिस हो, चाहे सफेद दाग हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, ये सारे ठीक हो गए हैं। ENT जो कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट, ये भी ठीक हो गए हैं। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था यू आर नो मोर नाउ, आज 18 साल से वो जिंदा है। कैंसर वाले, किडनी वाले, हार्ट वाले, हर कोई आर्टरी ब्लॉकेज हो गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें कुछ नया नहीं है, अचरज नहीं, अचंभा वाली बात नहीं है। सो सिंपल, ये सफाई हो जाती है, जो रुका हुआ निकल जाता है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। करता है शरीर, और शरीर के भीतर बैठे भगवान। हमें तो केवल मौका देना है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम गलत जगह चले गए हैं, एलोपैथी के पास, आयुर्वेद के पास, होम्योपैथी के पास, नेचुरोपैथी के पास, योगा वालों के पास, वास्तुशास्त्रों वालों के पास। ये सारी हमारी अज्ञानता है, गलतफहमी है, भ्रांति है। इससे ना किसी को ठीक हुआ ना हो सकता है। ये खुद का प्रयोग है, परिवार का है, और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी बातें मानो मत, डोंट बिलीव एट ऑल, करके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा। यू आर द बेस्ट जज। आपको खुद को करना है, और खुद को परिणाम लेके ये सही या गलत ये निश्चय करना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगता है एकदम सिंपल सरल, और है भी सिंपल सरल, लेकिन हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और कोई प्राणी जो पढ़े लिखे नहीं है, हम वो ऐसा सरल जीवन जीते हैं, अपना भोजन खाते हैं और कुछ नहीं करते, इसको कोई रोग नहीं होते। बस इससे ही हम सीख सकते हैं। तो फिर भी हमने गलत खाना खाया तो सफाई जरूरी है। तो आज हमारे लिए सही खाना बात की बात है, लेकिन सफाई फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले सफाई करना है। तो सफाई के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी, वो है बड़ी आंत को साफ करना सादे पानी से। इसको दुनिया एनिमा कहते हैं, हम इसको संजीवनी कहते हैं, क्योंकि मरते हुए लोगों को, मरीजों को इसने जीवन दान दिया है। आज भी जिंदा है लोग, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज भी जिंदा है। 18 साल हो गए, और ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग करके देखो। ओके, तो एक सफाई हो गई। अब दूसरी सफाई है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी न खाना न पीना, पेट में कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा लेना, ब्रीदिंग, एयर फास्टिंग, और केवल 8 घंटों के लिए हर दिन। आज हमें 32 साल हो गए, उठने के बाद हम 8 घंटे के लिए कुछ भी पेट में नहीं डालते। इसके पहले उठने के साथ खाते थे और सारा दिन खाते रहते थे, पानी भी पीते रहते थे। आज उठने के बाद 8 घंटों तक केवल हवा, न पानी, न चाय पानी, न कॉफी, न कोई नाश्ता, नथिंग डूइंग। और इसी हिसाब से आज हम जिंदा है और निरोग है। 32 सालों से न मुझे न मेरी पत्नी को कोई दवाई की जरूरत पड़ी है, न कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर्स अवश्य हमारे पास आते हैं, और केवल एलोपैथ नहीं, हर कोई, और उनके रोग भी ठीक होते हैं, हो गए हैं। तो ये लंघन जो है, न खाना न पीना, जब हम ऐसा कहते हैं, और हमारी आदत है उठने के साथ खाने की,
और कहावत भी है कि उठने के साथ राजा जैसा खाओ, जस्ट लाइक कहती, दोपहर व्यापारी जैसा, जस्ट लाइक ए मर्चेंट, और रात को भिखारी जैसा, यानी हल्का सा। तो एक करके देखा, सारी दुनिया ने आज भी कर रही है। परिणाम क्या है? हर कोई बीमार है। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, उठने के साथ भिखारी, दोपहर व्यापारी और रात को राजा। तो रोग चले गए। सफाई कर ली और खान पान में ऐसा बदलाव किया, रोग सारे चले गए। अब जैसे जैसे पता चलता गया कि रात को भी राजा जैसा जो भोजन खाते हैं वो भी गलत है, ये हमारा भोजन है ही नहीं, तो ऐसा हम क्यों पेट में डालें? तो ये भी हमने धीरे धीरे बंद कर दिया और केवल गॉड गिवन अन्न, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, और जहां तक हो सके खुली हवा, खुला आकाश, खुला प्रकाश लेने की हम कोशिश करते हैं। तो आज मैं 80 तक पहुंचने आया हूं, 79 चल रहा है मेरी उम्र। तो इस हिसाब से धीरे 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 जैसे पता चलता जाता है, भोजन में बदलाव करते जाते हैं। आपके बारे में भी ऐसा होगा, लेकिन अभी शुरुआत ऐसे करनी है। सफाई पे सबसे ज्यादा जोर देना है। पहली सफाई बड़ी आंख की सारे पानी से, जो मैंने आपको बताया। दूसरी सफाई उठने के बाद 8 घंटे का उपवास, खाना न पीना, केवल हवा पे रहना। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये केवल हमारी आदत है। आदत हम बदल सकते हैं। हम भी ऐसा ही खाते थे, नहीं खाते थे तो सर दर्द होता था, चक्कर आने लगते थे, ऐसा लगता था नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये हमारी भ्रांतियां थी। जैसे ये बदलाव कर लिया, आज बिना कुछ खाए पिए 32 साल से हम जी रहे हैं। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। गुजरात में प्रहलाद भाई जानी हो गए 80 साल। आप देखो 80 साल में केवल 8 घंटे की बात करता हूं। 80 साल तक बिना खाए पिए केवल हवा पे रहे। दुनिया के सारे चिकित्सक, वैज्ञानिक, डॉक्टरों ने इनके 2-2 बार ये सब कुछ इसकी कसौटी भी की। एक कमरे में रखकर, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखकर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 80 साल तक बिना कुछ खाए पिए वो जिंदा रहे, अपने काम करते रहे। तो 80 साल रह सकते हैं। मैं तो केवल 8 घंटा, और 8 घंटे रहने वाले आज करोड़ों लोग हैं दुनिया में। हमें केवल श्रद्धा विश्वास रख के खुद पे प्रयोग करना है। एक साथ 8 घंटे नहीं होते, कोई बात नहीं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना हो सके वहां से शुरू करके धीरे 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 आगे बढ़ना है। लेकिन कम से कम 8 घंटे में जाना है। बाद में तो आप 8 दिन भी कर पाएंगे। मेरे साथ तो मेरा भतीजा आया है प्रताप, वो 11-11 दिन बिना कुछ खाए पिए रहता है। हम भी रह सकते हैं, हर कोई रह सकते हैं, केवल आदत डालना है। तो ये दूसरी सफाई हो गई। केवल 8 घंटे हम बताते हैं। 8 दिन हो सके जिससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे तो हर किसी के लिए आसान है। बच्चों की बात करें तो बच्चों को 8 घंटे की बात नहीं है। वहां उनको अपनी ओर से नहीं खिलाना है, ऑन डिमांड देना है। जब वो मांगता है तब देना है, वो जब देना है तो उनका सही भोजन, जो कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, वो देना है। और जहां तक हो सके खुली हवा में रखना है। खुले नीले गगन के तले धरती का प्यार करे, तो ऐसे खुले में उनका उछेर हो, इसका ख्याल रखना। तो ये 2 बात हो गई। अब तीसरा है, जब हम खाना शुरू करते हैं 8 घंटे के बाद, तब अब क्या खाए? ऐसा नहीं, ऐसा डाले
कि जिससे सफाई हो, क्योंकि अब हमारा समय सफाई का। तो ऐसा नहीं खाना कि जिससे गंदगी बने। अब ऐसा खाना जो गंदगी है इसको साफ करे। तो एक खाना है जो जूस आपने यहाँ से पिया होगा, इसके रेसिपी आप सीख लेना। रेसिपी की बुक भी शायद यहाँ होगी। ये सारे कुछ किताबें हम यहाँ हमारे साथ लाए हैं, रेसिपी की है। तो आप रेसिपी बनाना भी जरूरी नहीं है, बाद में शुरू में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक कोई भी बुक्स जिसको चाहिए काउंटर से मिल जाएगी। गुजराती में है, हिंदी में है, शायद इंग्लिश में भी होगी, मराठी में है, मराठी कोई जानते हैं तो इस तरीके से जूस बनाना है। छन्ने से छान देना, नो फाइबर लेस लेना। आज तक हम गलत फहमी में रहे कि फाइबर वाला खाओ, फाइबर से सफाई होती है, सारी गलत बातें हैं। आज मेरा खाना केवल जूस नहीं, आज जो कुछ मैं खाता हूं वो चबा चबा के, जैसे हम गन्ना खाते हैं, रस पेट में जाता है, बचा हुआ बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह मैं चाहे अंगूर भी खाऊं, टमाटर खाओ, कुछ भी खाओ, चबा 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 कर जूस अंदर जाता है, जो बचता है बाहर कर देता हूं। ये शरीर के लिए हल्का भोजन बन जाता है पचने में। लेकिन ऐसी कक्षा हर किसी की तुरंत आ जाए जरूरी नहीं, केवल इतना करे। ये सफाई 3 महीने तक अवश्य करे। 3 तरीके से जो मैंने बताया फिर से रिपीट कर देता हूं। एक है संजीवनी, सुबह 2 और रात 2 बार, और समय मिलता है तो सुबह 2 बार, रात 3 बार, और एक साथ 3 बार भी कर सकते हैं, टोटल 9 बार शुरू में 3 महीने के लिए। इसको कोई रोग है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है इसको होगा नहीं, और है इसका धीरे धीरे चला जाएगा। तो एक सफाई, दूसरी सफाई मैंने बताई लंघनम परम औषधम, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे पेट में कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा जाएगी। 8 घंटों के बाद क्लींजिंग जूस, लैक्सेटिव जूस, सफाई करने वाला जूस, बस ये 3 बातें 3 महीने तक करके देखो, ज्यादातर रोग चले जाएंगे। बाद तब तक पता भी चल जाएगा कि कुछ हद तक बहुत गहराई पे है, तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड कर लेंगे। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया है, ये सफाई हो गई, रोग निकल गए। अब लाइफस्टाइल, लाइफ लॉन्ग हमें कैसे क्या खाना, हमारी दिनचर्या, खान पान कैसी होनी चाहिए। तो यदि हम अन्य प्राणी की तरह खाते हैं, यानी कि हमारा सही भोजन अपक्व खाते हैं, तरोताजा खाते हैं, तो कोई नियम की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी भूख लगे खाना है, जब भी प्यास लगे पीना है। कितना ऐसा भी नहीं, वो शरीर डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड नहीं करना है। कितना खाना, कितना पीना, शरीर या तो शरीर के भीतर बैठे भगवान तय करेंगे। तो इस तरीके से यदि ले सकते हैं तो लाइफ लॉन्ग, जिसको सही लाइफ टाइम कह सकते हैं, इसमें हमारा डिजाइन फूड ही आएगा। कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश। लेकिन सभी के लिए संभव नहीं, तो कोई बात नहीं, रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खा ले, केवल एक बार रात को। इसमें सब्जियां ज्यादा, अनाज कम, 70% सब्जी और बाकी बचा अनाज, अनाज से बची बने चीजें।
दूध से बनी चीजें कभी भी नहीं, न पनीर, न मक्खन, न घी, न मावा, न मिठाइयाँ, न चाय, न कॉफी, कभी भी नहीं। एक साथ नहीं छूटता, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन छोड़ना जरूरी है। तो इसी तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे खुद को पता चलता जाएगा, हम जो गलत आहार रात को लेते हैं ये भी धीरे धीरे खुद छोड़ देंगे, जैसे मैंने छोड़ दिया। तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी बहुत सवाल उठते थे। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर, परिणाम मिला, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता था। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। मैंने 9 साल इसलिए खुद पे और परिवार पे प्रयोग किए। तो आपको भी कुछ समय क्वेश्चन आंसर के लिए दिया जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, 2 ही बातें याद रखना है। सबसे पहले सफाई, 3 तरीके से सफाई कर ले। 3 महीने तक आवश्यकता लगती है तो और ज्यादा समय तक सफाई चालू रखे। जब सारे रोग हट जाए, बाद में सही भोजन खाए, डिजाइन फूड जो हमारे लिए भगवान ने बनाया, जो भगवान ने खुद खाया, हनुमान जी ने खाया, ऋषि मुनि तपस्वियों ने खाया, लेकिन आग पे बिना पकाए खाया। ऐसा भोजन हम खाएंगे तो ये सुपाच्य अच्छी तरह से पच जाएगा और कोई रोग होने की संभावना अब नहीं बचेगी। चाहे सारी दुनिया में कोई भी महामारी फैल जाए, अभी अभी शुरू हो गई है, आप सभी को पता होगा। HMPV जो कहा जाता है, ऐसा वायरस नाम दिया है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई। तो ये कोरोना से भी शायद भयंकर हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। आज से आप शुरू कर दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बिल्कुल डरते नहीं हैं। हम न मास्क लगाते हैं, न सैनिटाइजेशन में मानते हैं, न दूरी रखते हैं, हम तो गले से लगाते हैं सभी को। तो ये सारी गलत बातें हैं। इससे कोई वायरस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस तो थे, है और रहेंगे। अंत में आपको एक जरा बता दूं, ये सारी सृष्टि बनी सबसे पहले ब्रह्मा ने, भगवान ने सूक्ष्म सृष्टि बनाई, यानी जो बैक्टीरियल जगत है, बैक्टीरिया हम वायरस कहते हैं, सबसे पहले उनको बताया। बाद में हमारे ये सारे प्राणी को भगवान ने जन्म दिया। तो बैक्टीरिया या तो वायरस हम नहीं थे तब भी थे, आज भी है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन बैक्टीरिया या तो वायरस तो रहने ही वाले हैं। तो इससे अब डर के हम कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए बताया है, पिक्चर का गीत मैं आपको सुना दूं और यहाँ मैं क्वेश्चन आंसर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये गायन ऐसा है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन कहते हैं? वायरस। प्यार है हमें, दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनसे दुश्मनी करते हैं, वैक्सीन ढूंढ के उनको मारते हैं, तो हम खुद को मारना है और कुछ नहीं। हाँ, ये भगवान ने बनाए, हमारे रक्षक है, लेकिन ये गलत फहमी हमारी है कि हम भटक गए हैं। कानमा संभला तो न थी सविता बेन। हाँ, देखो पहले तो जो मैंने आपको बताया सफाई,
करके देखो 3 महीना, दोनों कान में सुनाई नहीं देता है, कोई कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 3 महीने करके देखो आपको कितना लाभ होता है पता चल जाएगा। हो सकता है आप सुनने लगो। और एक यहाँ दूसरा जरूरी है, जिसको कान में कोई और समस्या भी है तो जो स्वमूत्र है, मैंने बताया, मैंने बहुत प्रयोग किया है, गौमूत्र स्वमूत्र, तो ये स्वमूत्र बाहरी उपचार भी बहुत फायदा करता है, हमने देखा है। तो ये स्वमूत्र कभी कभी पेशाब जाते हैं तो एक बर्तन में लेके इसमें केवल डाल के निकाल देना और रात भर सोएंगे तब रहेगा। ये भी कुछ इनका भी अच्छा वो सफाई करेगा और कुछ नहीं, सफाई ये यहाँ ओवरऑल आप देखो तो केवल सफाई पे जोर देना है, इतना करके देखो। और बाद में आपको कुछ लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जिसको लिखना है मैं लिखवा देता हूँ, जो व्हाट्सएप पे है, वो है +91 81 698 44 909। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, +91 81 698 44 909। कृपया कंदमूल पत्तियां का विवरण डिस्क्रिप्शन और कंदमूल पत्ते, कंद यानी कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, ये सारे प्लांट बेस्ड फूड है, ये वनस्पति जन्य है, पेड़ पौधे से मिलता है। जमीन के नीचे जो होते हैं वो मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, और ये रूट में जो गांठे हैं, ये गांठे को कंद कहा जाता है। जैसे अदरक है, सूरन है, पोटैटो है, आलू, ऐसे बहुत शकरकंद है, बहुत सारे हैं। मूल ही है, लेकिन मूल में जो गांठे इसको कंद कहते हैं, बाकी को मूल कहते हैं, दोनों जमीन के नीचे हो। और फूल के बाद लगने वाले साथ फल है, हमने यहाँ भी बंटवारा कर दिया है। फल हम पपीते को, आम को, सेब को, ग्रेप को, इसको फल कहते हैं। लौकी को, तुरई को सब्जियां कहते हैं। खीरा, टमाटर, इसको सलाद कहते हैं। अभी ये सभी को ये अपनी अपनी मर्जी, लेकिन फूल के बाद जो लगते हैं वो सारे फल की व्याख्या में आते हैं। तो ये सारे प्लांट बेस्ड फूड है। स्किन डिजीज मैंने आपको बता दिया, सभी के लिए एक ही है, ये करके देखो। 3 साल से स्लीप टेस्ट, मिनट से ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, करके देखो। एक आपको एग्जाम्पल दे दो, स्लीप डिस्क वाले तो ठीक हो गए हैं, लेकिन यूएसए शिकागो में मुकेश भाई पटेल, उनको एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से घुटनों की गद्दी फट गई और हड्डी टूट गई और तो पार्सल पीठ पे गिरा, इससे 3 मनके टूट गए और उन्होंने वहां के डॉक्टर की ट्रीटमेंट की। एक डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ, बढ़ता गया। 2 डॉक्टर की टीम ने काम किया, 2 से काम नहीं हुआ, 3 ने काम किया, ऐसे 5 डॉक्टरों ने मिलकर 1.5 साल तक ट्रीटमेंट की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं और इसकी कठिनाइयां बढ़ती गई। वो बेड रिडन हो गया, करवट भी अपने आप नहीं बदल सकता था,
जरूरत पड़ती थी किसी की। अब उन्होंने इंडिया आके ऐसा एक सेमिनार जो 5 दिन का 1 हफ्ते का चल रहा था, ऊंचा बहुत गुजरात, तो वो अटेंड किया। वो छोटा सा गांव था मेरवाड़ा करके। ऐसा आदमी जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब लाइफ लॉन्ग आपको बेड रिडन रहना पड़ेगा, दवाइयां खाते रहो, ऐसा मरीज, ऐसा आदमी, ऐसा जवान जिसको 2 छोटे बेटे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, 5वें दिन दौड़ने लगा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या। बाद में उन्होंने वहां जाकर डॉक्टरों को बताया और हमें बुलाया। 2015 से हम यूएसए जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक एक्सीडेंट जिम्मेवार है। बाद में तो उन्होंने जॉब से वो छुट्टी ले ली और अपना खुद का मोटेल बनाया, बहुत बड़ा, बहुत शारीरिक श्रम करके दूसरा भी मोटेल लिया। आज तक उनको कोई ऐसी समस्या नहीं है। सब कुछ ठीक होता है, करना पड़ेगा। हाँ, सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं। और कोई सवाल? ओके, तो समय मर्यादा में हमें बताना था, बता दिया है। शंका जो थी समाधान कर दिया है हमारे अनुभव के आधार से। अब आगे का कार्यक्रम Thank you so much, Guruji, for a knowledgeable session. I'm sure हम सबको उसका फायदा हो गया. Basically, it's upon us, as he said, it's upon us to change ourselves. जितना मुझे समझ में आया, it's like you have to change our lifestyle, change करना पड़ेगा. Number 1, and जैसे इसने कहा कि enema treatment, फास्टिंग हम सब सुनते आए, हम लोग तो खाते ही रहते हैं, ओवरलोड कर रहे थे। एंड देन आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग दैट्स गोइंग टू डू गुड ऑन अस। इन केस आप किसी को, गुरुजी को पर्सनली मिलना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आनंद और कमलाबेन। ही इज हियर फॉर अ वीक मोर एंड आप लाभ ले सकते हैं। So ladies and gentlemen, we have finished with this knowledgeable session and खूब आभार गुरुजी, keep coming and हमारी अनुषा वासियों को थोड़ा बहुत और knowledge मिले। Thank you so much. Also madam, thank you so much ma'am. And we would like to give a big thank you to Anand Shastri, Kamalaben and हमारे पंडित सबको, हम सबको invite करके, और we all got something, we all learned something. Thank you so much. Thank you so much and have a nice Sunday.